باپ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ پر ایسا صدمہ لگا کہ وہ اکثر خاموشی رہتی تھی، کسی سے بھی بات نہ کرتی، بہت خاموش اور گمسم سی رہتی تھی۔ انہوں نے خود کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف پیٹ میں ایک بچہ تھا جس کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو سمجھایا کرتی تھی کہ اے آمنہ، اب تمہاری سب سے بڑی امید تمہارا یہ بچہ ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شوہر کو یاد کر کے حضرت آمنہ بہت رویا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتے بن گئے اور ہفتے مہینے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی مولود پوری کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی تھی کہ جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر میں باہر نکلتی تو بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے پاس جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا کہ میں اپنے ہاتھوں میں ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا کر رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ عالمہ آمنہ تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہیں ہمارے جانے سے یہ پانی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینے میں کوئی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی تھی کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چاچا اسی انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تھے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکا پیدائش کے 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں، تو ان کی عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور معلوم کیا کہ کہاں کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکے میں 5 ایسی عورتیں ہیں جن کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودی نے کہا کہ نہیں ایسے بچے کی پیدائش کی جس کا باپ وفات پر جا چکا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبداللہ مطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں کے نکل کر مکہ والوں کے میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزر گیا، آخر وہ دن بھی آیا جس کا سبھی کو
बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आया जिसका इंतजार आसमान व जमीन, चरिंद व परिंद और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था कि अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए। उस बच्चे की पैदाइश बहुत हुई तो जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रुक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी की जिब्रील 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनका महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत सिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छिप गया था। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर में बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम थे कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने को भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे थे कि अगर भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उनके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा और बाहर भी अंधेरा। सारा सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटे बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई जिन्होंने देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी नाफ माँ के आंत से जुड़ी हुई थी, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैदा हुआ तो अंदर से खून का कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका माँ के पेट के अंदर ही से खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमिना से कहने लगी कि आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके में कमर बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। यह देख हजरत आमिना की भी हैरानी की इंतहा ना पड़ी रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ये लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाला आज सिर्फ अल्लाह है। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चों को अपनी गोद में ले लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल सा छाया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोदी से मेरा बच्चा उस बादल में साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर में एक आवाज आने लगी कि जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर के बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ये अब्दुल मुत्तलिब, मुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में खत्म हो गई हो। वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि उनकी
आंखों में आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर निकाल कर आई तो नजर पड़ती है कि सबके होश उड़ गए कि उस कुदरत कदर खूबसूरत बच्चा आमिना के घर पैदा हुआ। सारे चच्चा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सुवैबा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि अबू लहब तुझे भतीजा मुबारक हो। ये सुनकर अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुवैबा से कहा कि जा, मैं तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अब फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिया काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चलते जा रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी से बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी मायूस देखकर और सब उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों का तहलका मच जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ये अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते को रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की इस दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे भाग चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन में ही मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि चचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजरें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगलियों के इशारे में नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते उधर चांद दौड़ता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी की, जिसके घर में इतनी गरीबी थी कि उसकी माँ अपने इस तमीम बच्चों के लिए खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को ये हुक्म दे दिया कि ये चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाटें धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। तो उसने आसमानों पर देखा तो वो सारी निशानियां देखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। तो उसने मक्का वालों को पूछा कि क्या आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप ना हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उसे बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमिना के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने का मुहर लगी हुई थी।
جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا کہ ہائے افسوس، آج یہودی کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب اس کی بربادی بہت قریب ہے۔